Good evening, everyone, and welcome to day 10 of the Magic Book by Rhonda Byrne. So, anyone wants to share how you felt writing on the bills, thank you paid, or thank you for the money? जिन लोगों ने ये सेशन पहले कर चुका है, सम ऑफ यू हैव शेयर्ड इन द ग्रुप। आप लोग जो पहले सेशन कर चुके हो, आर यू डूइंग इट रेगुलरली? कि कोई भी बुलाता है तुरंत आप उसके ऊपर लिख देते हो, या थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई थी एंड येस्टरडेज सेशन वाज लाइक अ रिमाइंडर टू बिकम अ मनी मैग्नेट? I was doing it on and off. Not every time I would get a bill, but if I have a bill, I would collect it definitely, and maybe once a week, कभी drawer से निकाल के, then I would just write thank you paid on it. And each time I would write, I would definitely, feel the gratitude. And वो जो chain of thought जैसे बोलते हैं ना कि डीजल का बिल है तो कहाँ से वो डीजल आया, थैंक यू फॉर दिस पंप राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, सडनली मेरे को ज़रूरत थी, एकदम मेरे लिए कन्वीनियंटली लोकेटेड था वैसे करने का। अब जैसे कुछ स्पा ट्रीटमेंट करा के आए हैं तो आई वुड राइट थैंक यू पेड और बहुत ग्रैटिट्यूड, कितना अच्छा रिलैक्सिंग अमेजिंग सेशन था। ऐसा लग रहा था कि बस बार बार यही आते रहो। आई एम सो थैंकफुल फॉर द क्लाइंट टू गिव मी मनी फॉर दिस, so that I can indulge myself in these occasional what is it called pampering। तो हम ऐसे उसको करते हैं। तो यू कैन ऐड टू इट, आप उसको पूरा चेन बना सकते हो कि कैसे किसने किया, किसने आपको अटेंड किया। जब आप थैंक यू पेड या थैंक यू फॉर द मनी लिख रहे हो, यू कैन फील द वाइब्रेशन एंड फील योर सेल्फ। यू कैन, आप उसको रीलिव कर सकते हो उस एक्सपीरियंस को फिर से। ओके, यस यस अदिति, यू वांट टू शेयर समथिंग? यस आंटी। आंटी वो मैं एग्जाम्स होने के बाद हम लोग का काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा था। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ये पूरा एमबीबीएस का लाइक एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में इट इज अ लॉन्गेस्ट प्रोसेस। पूरा 3 months लाइक वी हैव टू वेट एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। So 2 days before, while I was attending the session, it was told that the 18th को हमारा result आएगा, and I was waiting from the morning कि when the result will come. So I thought कि from today, means since morning I have not written my like grateful in that one. So I thought कि पहले मैं अपना blessings लिख लेती हूँ, तभी आएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था, तो मैं सुबह से लिख नहीं पा रही थी, लाइक कुछ कुछ हो रहा था, मैं लिख नहीं पा रही थी। शाम हुआ, मैं बोली कि एक बार लिख लेती हूँ। मैं जाके अपना ब्लेसिंग्स लिखी और मैंने फिर अपना मैनिफेस्टेशन इसमें लिखा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई गॉट दिस कॉलेज। एंड आफ्टर दैट आई वाज अटेंडिंग द सेशन एंड माय ब्रदर केम एंड सेड कि yes, you have got admission in this college and the same college, and I'm so happy for that. Wow, congratulations. Welcome, Aditi. All the very best. Yeah. So happy, yeah, that you wrote and you got it. Yeah. I was feeling like कि मैं सुबह से लिखती हूँ, मैं लिख लेती हूँ, and I wrote and I joined the session, and in the middle of the session my brother came and said your name has came, you have got the admission. Hmm. Wow. Oh, excellent. More and more magic to you, Aditi. And you just keep rising and shining. And आप सोचो, इतना अच्छा डॉक्टर जो पहले से ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा है, आई एम श्योर ईच टाइम समवन कम्स टू कंसल्ट यू, you're already cure that person with magic dust. Yes? Yes, Yes. excellent. And please show them the path of gratitude as well. Yeah, एक बुक का पीडीएफ सबको फॉरवर्ड कर देना। Yeah, ठीक। Yes. Thanks, Aditi, for sharing. It's inspiring कि people are getting their goal. Yeah, Very inspiring. Thank you. yes, yes. Thank you so much, Aditi. Thank you. And Thank you, auntie. yes, yeah. And Aditi, what you wrote about, the bills, that was also very inspiring, by the way, huh? कि उसके कारण your everything, whatever you were feeling, you were writing it. So that also inspires others कि आपको कैसे वो feelings generate करनी है when you're writing or doing any practice for that matter। अब जैसे कल हम लोग का मैजिक इंग्रेडिएंट वाला प्रैक्टिस था, क्या आप लोग अभी भी उसको कर रहे हो विद ईच टी और कॉफी? दैट इज whenever I was doing something, I was thinking of reminding all of us that yes, this practice is also there. It was not just for yesterday or one day. Each of the practices that we are doing, we have to incorporate in ourselves. We have to inculcate the habit of gratitude. Yeah, we have to make it our attitude. A friend of mine had given me a notebook on my birthday, attitude of gratitude. I was like, wow, यही करना है हम लोग को, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। देन वी जस्ट हैव मैजिक्स एवरी डे ऑल द टाइम, इट विल बी लाइक नॉर्मल। या जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, वैसे ही हमारे लिए मैजिक्स हो जाएंगे। क्या बोले आज क्या मैजिक हो, जैसे कई जन पूछते ना कुछ नया बताओ, तो उसमें आपका नया में हमेशा कुछ ना कुछ एक मैजिक ही रहेगा। वैसे ही लाइफ चाहिए ना हमको। क्या
So thank you for this. So let's start. One more thing happened. Yes, wow. Yeah. We are two best friends, means we are sisters as well as our best friends in there. तो Yeah. since childhood अभी तक हम लोग साथ पढ़े, सब जगह सब साथ पढ़े. But अभी क्या हुआ है ना कि we both got different colleges. We are allotted a different college. So we are having 3 rounds in this. So she will be upgrading. Like she will also try for the same college. So I'm manifesting for that also, that we get the same college. So हाँ. yesterday I went along with her to her college. Means we are so close that I went along with her to her college for the registration and all. So there, what happened that I went to my neighbor's house and I want means for many days I was thinking about one gift, and she gave me the same gift I wanted. But when I opened the gift, it was the same what I wanted. Okay, wow, very nice. And I'm sure if you keep doing these practices and give gratitude to your college where you want your cousin or sister, best friend, वो भी वहीं पे पहुंच जाएगी, ठीक है? I'm sure. So more, I'm manifesting that it's the same yes, college. yes. Okay, wonderful. So thank you, Aditi. More and more magic to this amazing upcoming doctor. Upcoming नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं? Skilled doctor. Okay, full of compassion and everything. So thank you. Yeah. So who wants to read today? Today is again a wonderful chapter. Yeah, I can. Okay, ठीक है. Aditi will read for us. Oh, sorry, one second. Share. Yes. Day 10, magic dust everywhere. या तो हमारे 10 डेज पूरे हो गए हैं, ठीक है? तो अगर अभी भी आपकी कुछ प्रैक्टिसेस छूट जा रही हैं, 10 डेज इसलिए पूरे हो गए हैं क्योंकि डे 0 भी हम काउंट कर रहे हैं. अगर आपकी कुछ प्रैक्टिस आप अभी भी लग रहा है कि हाँ थोड़ा आगे पीछे हो रही हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको ऑन ही रखो, सो दैट वी गेट इन टू द हैबिट ऑफ बीइंग ग्रेटफुल. इट शुड नॉट बी कि नहीं अब हम अगले सेशन में करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तो लेट हो गया, अब 3-4 दिन की नहीं की है, कोई बात नहीं, अगली बार जब बुक स्टार्ट होगी ना कोई और स्टार्ट करेगा तब हम डे 1 से करेंगे. नहीं, ऐसा एकदम ही मत सोचिएगा. आप जहाँ पे हैं एक बार इसको तो करिए ही, फिर जब स्टार्ट होएगा तो आप ऑलरेडी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, तब आप उसको और अच्छे से करिएगा. ओके, सो इन दिस पिक्चर इफ यू सी वी हैव डिस्कस दिस मैनी टाइम्स. जो लोग न्यू हैं उनको उनको कौन बताएगा कि ये क्या लग रहा है ये सीन? आप देखो इसमें बहुत सारे लोग लैपटॉप बैग जस्ट एक स्लिंग या बैकपैक लेके कुछ लोग जा रहे हैं और आप देखोगे कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है? अब इस गेट के ऊपर आप देखो इतने सारे ये क्लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है? स्ट्रीट दिखाई दे रही है बाहर. इट्स नॉट दैट कि माउंटेन हिल्स ऐसे कुछ दिख रहा है, किसी के हाथ में कोई हैवी लगेज नहीं है. या एंड वी सी लॉट ऑफ स्पार्कलिंग डस्ट ओवर हियर. अगर आप जूम करके थोड़ा देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि सबका सिमिलर सा टाइम है एंड इट इज़ ऑल अराउंड 9:30 टाइप्स, ठीक है? आप देखो 9:30 कुछ 9:20 25 ऐसे टाइप का है. आई एम श्योर यू हैव गेस दिस कुड बी अ मेट्रो स्टेशन और इट कुड बी अ सबवे स्टेशन या कोई लोकल ट्रेन स्टेशन भी हो सकता है. एंड पीपल आर गोइंग फॉर वर्क. ये जो मॉर्निंग का टाइम है आई एम श्योर ये सब लोग काम पे ही जा रहे हैं, ठीक है? दे हैव कम, दे आर जस्ट लीविंग फॉर देयर वर्क and they have lot of magic dust on them. So what is this chapter telling us? Let's read and understand. No building is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, AD 340 to 397, theologian and Catholic bishop. Yeah, so he's saying no duty is more urgent than that of returning thanks. हम लोग कब रिटर्न करते हैं कुछ? जब हमने कुछ रिसीव किया हो तभी तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं. उन्होंने ये नहीं बोला गिविंग थैंक्स. गिविंग थैंक्स मतलब आप ही किसी को कुछ अपने मन से थैंक यू कर रहे हो. रिटर्निंग थैंक्स हो गया कि आपको कुछ मिल रहा है या कोई सर्विस मिली है और आपको उसके बदले में यू हैव टू गिव बैक. रिटर्न इज लाइक गिव बैक ना. यू हैव टू गॉट समथिंग, आपको अच्छा नहीं लगा, हम लोग अमेजोन को बोल देते हैं हैप्पीली वो लेके चला जाता है, राइट? सो वी हैव टू रिटर्न थैंक्स. एंड ड्यूटी क्यों है कि हमने कुछ रिसीव किया है. ड्यूटी को हम लोग सोचते हैं कि इट इज़ आर ड्यूटी. किसलिए बोलते हैं वोटिंग इज आर ड्यूटी, राइट? व्हाट इज आर ड्यूटी? टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स. ऐसे ही बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स. इट इज़ आर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आर चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ आर होम, टेक केयर ऑफ आर सेल्फ. तो वैसे ही इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट ड्यूटी नहीं है. किससे ज़्यादा? रिटर्निंग थैंक्स इन रिटर्न ऑफ समथिंग दैट वी हैव टेकन.
Yeah. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. कह रहे हैं एंशियंट स्पिरिचुअल टीचिंग्स कहती हैं कि हमको अगर किसी और से कुछ मिल रहा है, ठीक है, और हम उसको अपने पूरे दिल से अगर ग्रेटफुल होते हैं तो 100 टाइम्स वो हमारे पास वापस आता है। से दैट वी गिफ्ट, हम लोग किसी और को अगर अपने मने ना दिल से बोलते हैं, दिल से थैंक यू बोलते हैं, दिल से कुछ देते हैं, तो वो हमारे पास घूम के आता है। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस, इसीलिए अगर हमको किसी से कुछ भी मिल रहा है तो हमको उसको दिल से थैंक यू बोलना है। एंड इट इज़ वाइटल, माने इट इज़ वाइटल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूविंग योर लाइफ। किसी और ने कुछ किया है, हम उसको सिर्फ थैंक यू बोल रहे हैं, जो ऑलरेडी वो कर चुका है हमारे लिए, उससे हमारी लाइफ में वंडरफुल चीज़ें आएंगी। क्या Gratitude is powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with the magic dust. The powerful positive energy in the magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. तो वो कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड में इतनी पावरफुल एनर्जी है कि हम जिसको भी थैंक यू बोल रहे हैं, हमारी एनर्जी उसके तरफ जा रही है। ठीक है, तो जब हम थैंक यू बोल रहे हैं मतलब हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं कोई चीज़ के लिए, वी आर फीलिंग अप्रिशिएटेड, या हम उसको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, तो एक ये पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये क्या हो रहा है, हम जिसको थैंक यू बोल रहे हैं उसके तरफ हमारी एनर्जी जा रही है। आपने पहले की पिक्चर्स देखी होंगी, पहले की नहीं अभी की भी ऐसी पिक्चर्स आती कि कुछ ऐसे ऐसे करते हैं और हाथ से कुछ ऐसे ऐसे रेज निकलती हैं और उसके डायरेक्शन में चले जाती हैं जिसके तरफ उसने अपना वो एनर्जी को डायरेक्ट किया है। तो रोंडा बर्न कह रही है ग्रैटिट्यूड भी इसी की तरीके का है। इट इज़ लाइक अ स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट, कि माने जिसको आपने थैंक यू बोला उसके ऊपर वो गिर रही है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, ये डस्ट उस तक पहुंचती है और उसके लाइफ में पॉजिटिविटी देती है। आप किसी की तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजोगे तो उसके लाइफ में अच्छा होगा कि गंदा? ऑफ कोर्स अच्छा होगा। आप किसी के लिए विश कर रहे हो, आप अपने लव्ड वंस को अगर ऑल द बेस्ट बोलते हो एग्जाम के पहले, या आप बोलते हो हैप्पी बर्थडे, या जो भी आप विश कर रहे हो, तो आप एक अच्छी फीलिंग से बोल रहे हो, तो 100% एनर्जी जाएगी उसके पास, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती एनर्जी। ठीक है, तो जैसी एनर्जी हम भेजेंगे वैसी ही एनर्जी उसके पास जाएगी। तो शी इज़ टेलिंग अस दिस कि हम जिसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं उसके पास वो स्पार्कलिंग डस्ट की तरह वो एनर्जी पहुंचती है। क्या Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in the stores, restaurants, elevators, buses, or the trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. And we love you. या सॉरी, या थैंक यू। एवरी डे वी आर मीटिंग सो मैनी पीपल। आप बोलोगे नहीं मैं तो नहीं मिलती हूँ, मैं घर पे हूँ, आपके घर पे कोई आ रहा है, कोई डिलीवरी वाला है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि नो एक्सक्यूज़। आप फेस टू फेस नहीं मिलते हो तो आप फ़ोन पे बात करते हो, किसी को ईमेल लिखते हो, आपके पास कोई मैसेज आता है, या आप कुछ भी ऑनलाइन भी कर रहे हो और आप ट्रैवल कर रहे हो, तो इतने सारे जगह आप जाते हो, वहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो शी इज़ टेलिंग अस इन मैनी केसेस वी मेक कॉन्टैक्ट विद डिजर्व आर ग्रैटिट्यूड। माने बोलोगे ऐसे कैसे, हम तो गए थे, हम यहाँ घर से निकले, ऑफिस गए, सीधे अपने कार से गए, खुद ही ड्राइव करके गए और ऑफिस आ गए। नहीं, वो कह रही हैं दे डिज़र्व आर ग्रैटिट्यूड। मतलब आप जब घर से निकले तो आपकी बिल्डिंग में कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, एक गार्डनर होगा, एक जैनिटर होगा जिसने पूरा सब कुछ क्लीन करके रखा हुआ है आपके घर के बाहर, आपके लिए स्पेशली नहीं किया उसने, लेकिन पूरे में करके रखा है। अब बोलो नहीं मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप घर से बाहर निकले, रोड्स एकदम क्लीन थी। ठीक है, हमारे सभी जगह क्लीन होती हैं, या आपने ऑन किया, ट्रैफिक लाइट ऑन ऑफ हुई, कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, राइट? आप अपने ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में भी सब कुछ स्पिक एंड स्पैन है,
राइट, किसी ने क्लीन करके रखा है, एक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके ऑफिस में, तो जितने सारी चीज़ें आपके लिए आपने यूज़ की हैं, आपने उनको एक्सपीरियंस किया है, उन सब के लिए हमको ग्रैटिट्यूड देना बनता है, बिकॉज वी आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम देम. Think about the people you encounter on a typical day to provide you with some kind of service, like those working in the stores or restaurants, bus or the cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. या तो रोंडा बन हमको फिर से कह रही हैं कि अगर हम घर से निकल रहे हैं, ठीक है, तो कितने सारे लोग हैं जो हमको इस तरीके से सर्विस दे रहे हैं. कैसे दे रहे हैं? दे आर गिविंग देमसेल्व्स टू सर्व यू. कैसे? आप ऑफिस में आए हो, ठीक है, आप बोलो नहीं हम तो अपना कार से आते हैं या वॉकिंग ही चले जाते हैं, मेरा ऑफिस एकदम पास में है, या आप कोई शॉप में गए हो, वहाँ भी आप ऐसे ही चले गए हो. नहीं, लेकिन वहाँ पे भी जो लोग हैं जो काम करने आए हैं या आपसे मिलने आए हैं, वो हो सकता है कैब से आए हों, बस से आए हों, ठीक है, वो सब भी तो किसी ना किसी की सर्विस ले रहे हैं, राइट. तो उनको भी हमको थैंक यू देना बनता है, ठीक है. अगर हम ये थैंक यू नहीं दे रहे हैं तो वी आर स्टॉपिंग द गुड फ्रॉम कमिंग इन टू योर लाइफ. क्यों? क्योंकि इतने लोगों ने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है, नॉट जस्ट आउट ऑफ कर्सी कि हमने उसको थैंक यू बोल दिया. आप कहीं पे जा रहे हो, किसी ने आपके लिए डोर ओपन कर दिया, आप कितने बार एलिवेटर में जाते हो, किसी बंदे ने, कोई वहाँ पे लिफ्टमैन नहीं है लिया, लेकिन किसी ने आपसे पूछा विच फ्लोर, और उसने आपके लिए वो बटन प्रेस कर दी, ठीक है, तो भी हमारे को उसको थैंक यू देना बनता है. हम लोग नॉर्मल, हम लोग नहीं, हम तो ऐसे ही थैंक यू बोलते ही हैं. नहीं, शी व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस दैट वी हैव टू फील द थैंक यू, क्योंकि वो थैंक यू उसके लाइफ में जब जाएगा, जिस पावर से, जिस फीलिंग से, उसी के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में वो वापस घूम के आएगा. Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely, and those who maintain the service of the utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about Yeah. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and the office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with a magic test by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. तो रोंडा बर्न हमसे यही कह रही हैं कि अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अरे मेरे लिए तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, तो हम थैंक यू क्यों बोलें और किसके लिए बोलें, तो आप इन सब लोगों के बारे में सोचिए. इतनी सारी सर्विसेज को हम यूज़ कर रहे हैं. आपके घर में पानी आ रहा है, आपने उसका पाइपलाइन लगवाया है, अब बोलोगे नहीं मेरा बिल्डिंग है, हम ही ने पे किया था प्लम्बर को नीचे से ऊपर तक पाइपलाइन लाने के लिए, मेरे टॉयलेट में सारे करने के लिए, मैं तो जानती हूँ उस प्लम्बर को. नहीं, आपने अपने घर में पाइपलाइन लगाई होगी, लेकिन क्या वो प्योरीफाइंग प्लांट से आपके घर तक जो पाइपलाइन जिसने लगाई थी वो अभी लगी थी? वो तो कई साल पहले लगी थी. तब वो किसने की थी? उसको आपने थैंक यू बोला है? नहीं. तो शी इज टेलिंग अस ईच एंड एवरीथिंग. जो रोड्स भी बनी हुई है वो किसने बनाई थी? आप बोल सकते हो कि मैं तो टैक्स देती हूँ, टैक्स देना वो तो हमको देना ही पड़ेगा, ठीक है, बट ग्रैटिट्यूड भी देना उतना ही ज़रूरी है, या इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही ज़रूरी है. शी इज टेलिंग अस थिंक अबाउट द क्लीनर्स ऑफ द वर्ल्ड. आप जहाँ भी ट्रैवल करते हो, आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, जो जो चीज़ें आप देख रहे हो, यूज़ कर रहे हो, अगर वो सारी चीज़ें क्लीन हैं तो किसी ने तो उनको किया ही है, तो हमको उनको भी ग्रैटिट्यूड देना बनता है. शी इज टेलिंग अस आप उनको पर्सनली थैंक यू नहीं बोल सकते, बिकॉज वी डोंट सी देम हाफ द टाइम व्हेन वी आर यूजिंग दीज एमिनिटीज़. वो लोग वहाँ पे होते ही नहीं हैं. आप रोड पे जाते हो, आपको हमेशा तो वो क्लीनर नहीं दिख रहा होता है, राइट. तो हमको क्या करना है, हमको मेंटली सोचना है कि आपने जो थैंक यू बोला मन में, वो उसके ऊपर मैजिक डस्ट की तरह गिर रहा है. जैसे मेरे बैकग्राउंड में है, तो आप सोचो उसके ऊपर आपने थैंक यू बोला, उसके ऊपर वैसे ही वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल हो रहा है. ओके, तो शी इज टेलिंग अस जब आप नेक्स्ट टाइम कोई भी क्लीन चीज़ देखो, जैसे उन्होंने बोला आपकी डेस्क हो सकती है, आप रोड पे जा रहे हो तो पेवमेंट हो सकता है, पॉलिश फ्लोर है, जिन लोगों ने उनको क्लीन किया है उनके लिए हमको ग्रैटिट्यूड फील करना है.
When you are at a cafe or a restaurant, sprinkle the magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with the water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in the store or the supermarket checkout, sprinkle the magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. अब बोलो नहीं, ये सब काम तो हम पहले से ही करते हैं। कोई हमको वाटर ग्लास देता है हम उसको थैंक यू बोलते हैं, हमको मेनू देता है हम थैंक यू बोलते हैं। लेकिन क्या आप दिल से फील करके थैंक यू बोल रहे हो? कई जन तो बोलते भी नहीं है। लेकिन क्या आपने देखा है कि वो बंदा कौन सा है या वो बंदी कौन सी है? उसका फेस भी याद है आपको? क्या ड्रेस पहना है? कुछ नहीं, आप अपना फ़ोन में बिजी हो। उसने ला के मेन्यू रखा, आपने दूसरे हाथ से ले लिया, फ़ोन रख के मेन्यू देख लिया आपने, राइट? सो आर यू फीलिंग दैट ग्रैटिट्यूड दैट समवन इज डूइंग दिस फॉर यू? Yeah, so she's telling us each time someone or something is doing it for you, every time we have to remember to say thank you। ठीक है? अगर आप रेस्टोरेंट कैफे इन सब में नहीं हो, आप जहाँ भी हो, कोई भी आपके लिए कुछ भी कर रहा है, किसी ने आपको आपके लिए बिल प्रिंट किया है, आपके लिए बैग ग्रोसरी पैक की है, ठीक है, जो भी आपके लिए हेल्प कर रहा है, वी हैव टू स्प्रिंकल मैजिक डस्ट एंड से थैंक यू। ओके, स्प्रिंकल करने से क्या होगा, हम लोग को और वो जेन्युइन फील आएगी कि हमारा वो थैंक यू उसके लाइफ में जाके असर कर रहा है। मेरी ये जो पॉजिटिव एनर्जी हम उसके तरफ भेज रहे हैं वो उसी के पास जा रही है। हाँ, यस अदिति, आर यू देयर? Yes, Auntie. If you are traveling by the plane, sprinkle the magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in the security, the person who checks your tickets as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or the trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. यस, तो आपने नोटिस किया होगा, आप जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो आपको स्टार्ट कैसे करती है? आप फ्लाइट में पहुंचते हो उसके पहले से ही वो लोग खड़े होकर आपको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम पे भी आप जा रहे हो वो आपको ग्रीट करते हैं, राइट? फिर क्या होता है, शी इज टेलिंग अस एवरी वन इज देयर फॉर योर प्रोटेक्शन, एवरी वन इज देयर फॉर योर सेफ्टी। ठीक है? फ्लाइट के अंदर भी जो अटेंडेंट है वो आके 10 बार चेक करती है कि आपने सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई है। उसकी जान है कि आपकी जान है? बोलिए, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है? बट शी इज़ केयरफुल, शी इज़ चेकिंग एवरी वंस की सीट सीधी है, ट्रे अंदर है, बाहर है, एवरी टाइम दे आर चेकिंग इट। दे आर सेइंग द पायलट इज़ थैंकिंग यू, द एयरलाइन इज़ थैंकिंग यू। आपको कुछ याद आ रहा है कि वो लोग क्या बोलते हैं? कि हम लोग फ्लाइट में बैठते ही अपने में इतना बिजी हो जाते हैं, वी डोंट बॉदर टू लिसन टू वॉट दे आर सेइंग। बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर सिटिंग इन द फ्लाइट, आप सुनिए कि वो आपको थैंक यू बोल रहे हो कि आप उनके फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो किंग या क्वीन की तरह, राइट? बट थैंकफुल किसको होना चाहिए? हमको थैंकफुल होना चाहिए कि हम फ्लाइट में जा रहे हैं, वो पायलट के ऊपर मेरी लाइफ डिपेंडेंट है, राइट? आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई, और हम लोग कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो सो रहा है, जग रहा है, क्या है। नहीं, हम लोग अपना मस्ती से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, अपना कोई नेटफ्लिक्स या कोई भी ओटीटी देख रहे हैं, या तो शी इज़ टेलिंग अस दे आर परफॉर्मिंग लॉट्स ऑफ ड्यूटीज़ फॉर अस। आपके लिए खाना लेके आते हैं, आपका ट्रैश लेके जाते हैं, 10 बार आप जितने बार 2-3 बार आते हैं आपका ट्रैश लेके जाते हैं, आपसे पानी के बारे में पूछते हैं, आपकी पूरी ध्यान रखते हैं वहाँ पे। एंड नॉट ओनली दैट, एवरी वन इज थैंकिंग यू फॉर इट। यस, एंड शी इज टेलिंग अस वी हैव टू रिमेंबर टू बी ग्रेटफुल, okay, because flying is also an absolute miracle। yeah, Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic trusts them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return.
यस। तो रौनक बन कह रही है हर जन जो आपको असिस्ट करता है चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ठीक है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको थैंक यू बोलें, हम उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करें, चाहे आपके वर्क कलीग्स हों, चाहे आपके घर के लोग हों, आपको जो भी कुछ भी सर्विस दे रहा है, वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू देम एंड वी हैव टू स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम। शी इज टेलिंग अस ऑल ऑफ देम आर डूइंग योर सर्विस एंड दे डिजर्व योर कंटिन्यूड ग्रैटिट्यूड। मन ये नहीं कि एक बार आपने थैंक यू बोल दिया काम खत्म, नहीं, माने जितने बार आपको अपनी टेबल क्लीन दिखाई दे, जितने बार आपको अपनी रोड्स दिखाई दे कि वाओ इतनी क्लीन है, उतने बार आपको उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करके उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है। यस। Store assistants, waiters, and the waitress work very hard to serve the people. They have chosen a job to serve other people. And serving the public means encountering all kinds of people in the varying mood, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or the son to the parents, an irreplaceable brother or the sister to the siblings, a mother or the father to a family, and children, and a loved and adorable partner or the friend, and they deserve your kindness and patience. यस। तो रोंडा बर्न कह रही हैं देखिए जो भी ये इस सर्विस में आते हैं जैसे स्टोर में असिस्टेंट हैं या वेटर्स एंड वेट्रेसेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों को सर्व कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग देयर ओन बिजनेस, या तो उनके पास जो स्किल है वो यही है कि वो दूसरे लोगों को असिस्ट कर रहे हैं। अगर वो कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो वो आपका ऑर्डर लेके शेफ तक जाते हैं, वहाँ से खाना लेके आ जाते हैं, कुक तो नहीं कर रहे हैं आपके लिए, राइट। और क्या होता है, जो स्टोर असिस्टेंट्स हैं वो चाहते हैं कि आप वहाँ से कुछ खरीद लो, उन्होंने तो बनाया नहीं है, दे आर जस्ट द सेल्स पीपल, वो आपको असिस्ट कर रहे हैं खाली। तो दे आर चूजिंग अ जॉब जहाँ पे उनको 100 टाइप्स के लोगों को या और उससे ज़्यादा टाइप के लोगों को साथ इंटरैक्ट करना है और उनकी बातें सुननी है। आपने कभी फ्लाइट में देखा होगा कि कई जन बहुत रूडली बिहेव करते हैं, एकदम गंदे से बिहेव करते हैं फ्लाइट अटेंडेंट से संग। ये कोई खाना है, एसी नहीं चल रहा है, कब से फ्लाइट में बैठे हुए हैं, ऑन नहीं हो रही है, कैसी स्मेल आ रही है, एज इफ ये उनकी फ्लाइट है, उनकी तो नहीं है वो फ्लाइट, दे आर जस्ट वर्किंग देयर। आप रेस्टोरेंट में देखो, उनका खाना आया, वो बोलेंगे चाय ठंडी है, कॉफ़ी ठीक नहीं है, द पर्सन हु इज गेटिंग द फूड ओनली फ्रॉम द किचन टू यू, उसके हाथ में कितने देर है वो ट्रे, मे बी मैक्सिमम 2 मिनट्स, आप उस पर ही चिल्ला देते हो अगर आपका फूड ठीक नहीं होता है। कई लोग इस टाइप के होते हैं, कई जन कंसिडरेट एंड नाइस होते हैं, वो उनको समझते हैं, बोलते नहीं शेफ को जाके बोलो ठीक करे, ठीक है, बट उनको तो दिन भर में कितनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं, दे आर ऑन देयर टोज ऑल द टाइम। आप सोच के देखो स्टोर में जो असिस्टेंट्स जो सेल्स पीपल रहते हैं वो सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, उनका ब्रेक टाइम होता है, बट बाकी टाइम दे आर ऑलवेज देयर स्माइलिंग फॉर यू, या उनके पैर में चाहे जितने भी लग रही हो पूरा दिन खड़े हैं, उनको भूख लगी हो, उनको वॉशरूम जाना हो, ब्रेक्स के बीच में नहीं जा सकते, ब्रेक्स के अलावा, एंड दे आर देयर, उनके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो सकता है उनके फैमिली में कुछ लॉस हुआ हो, उनके हेल्थ में कुछ इशू हो, उनके घर में कुछ चैलेंजेस चल रहे हों, बट दे आर एट वर्क एंड स्माइलिंगली हेल्पिंग यू, या तो शी सेंड ईच पर्सन हु इज देयर। हाँ, आप सोचो वो किसी का भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, पापा हो सकता है किसी का, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो वेरी स्पेशल टू दैट फैमिली। और हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर अगर हमने चिल्ला चिल्ली कर दी, आप सोचो क्या होएगा। आप इमेजिन करिए आपका कोई फैमिली मेंबर काम पे जाता है, राइट, उसको अगर कोई उसका बॉस या उसका जूनियर या उसका क्लाइंट चिल्लाता है और वो घर आपके आके आपको बताता है, आपको दुख होता है ना, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। जब सोचिए ना, बच्चे बदमाशी करते हैं और टीचर डांट देती तो टीचर के ऊपर तो आजकल केस हो जाता है कि तुमने डांटा क्यों उसको, राइट, क्यों डांटा तुमने मेरे बच्चे को। तो अब आप सोचो जो लोग ऐसे हमको सर्व कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर कोई ऐसे करता है तो कैसा रहेगा। दे ऑल्सो डिजर्व आर काइंडनेस एंड पेशेंस। आई एम श्योर आप सबने मुन्ना भाई MBBS देखी है, उसमें एक ऐसे ही सीन रहता है, वी डोंट इवन नो कि जो बंदा क्लीन कर रहा है, हो सकता है आपने घर में भी बच्चे लोग ऐसे शैतानी करते हैं, क्लीनिंग मॉपिंग हुई, तुरंत बच्चे लोग भाग के उसके ऊपर चले जाते हैं, यू सीन दिस। हाँ, मुन्ना भाई MBBS में भी यही बताया था कि तुरंत क्लीन किया और वो गया। तो आप हम शेयर करेंगे वो लिंक, दोज हु हैव नॉट सीन दैट मूवी और डोंट रिमेंबर इट, यू मस्ट सी बिकॉज रॉन्डा बर्न इज टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस। या At times, you may encounter a person in the service who behaves rudely towards you
or does not give you the attention you think you deserve. It may be challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through. At that time, you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in the desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. यस, रोंडा बर्न इज सेइंग दिस ओनली कि जब हम लोग, कितनी बार हमारे लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा कि आप कहीं गए हो और वो बंदा ही हमसे रूडली बिहेव कर रहा है, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, आप अपना हैप्पी जोन में हो, खाना खाने गए हो, रेस्टोरेंट वाले, आप जो वेटर आए उसने आपको बोल दिया कि यहाँ पे तो ऐसे ही मिलेगा, आपने बोला कि कॉफ़ी ठंडी है या गर्म है या जैसी भी आपको चाहिए थी वैसी नहीं थी, एंड यू से ऐसे ही है, इतने देर वेट करा आपने, आप बातें कर रहे थे, लेट हो गया, वट उसने आपसे गंदे से बिहेव किया, तो हम क्या करें, हम उसके संग रूडली बिहेव करें? नो, हमको अपना पॉइंट उसको बोलना भी है, तो इट हैज़ टू स्टिल बी डन पोलाइटली. Why? Because if we are being rude, if we are not choosing positive feelings, what are we choosing? We are choosing something negative. We are choosing darkness and we are missing the magic in our life. So this is what she's telling us. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. मैंने each time you are choosing not being grateful, you are removing magic in your life. Okay, so she's just giving us this only कि जब आपने उसके रूडनेस या उसके अच्छे बिहेवियर के बावजूद, आप उसके गंदे बिहेवियर के बावजूद आपने उसको अच्छे से बात किया, इट कुड बी कि उस समय इतना दुखी हो, वो अपनी, हो सकता है आपके उस स्माइल से, आपके उस एक्नॉलेजमेंट से ही उसको अच्छा लगने लगे कि येस, नाउ आई एम ओके, समवन स्पोक नाइसली टू मी, है ना. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि हमको पता नहीं है कि उसके लाइफ में उस दिन क्या हुआ है, ठीक है, एंड वो उसका फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रहा है. अगर आपने रोंडा बर्न की सीक्रेट या पावर बुक पढ़ी है, उसमें रोंडा बर्न ने हम लोग को समझाया है रिपल इफेक्ट. रिपल इफेक्ट पता है हम लोगों को? रिपल इफेक्ट ऑफ इमोशंस नहीं पता है? आई टेल यू. क्या हुआ, आप सोचिए, आप सुबह घर से निकल रहे थे और मे बी आपकी चाय या कॉफ़ी गिर गई, ठीक है, आपका मूड कैसा हो जाएगा? गुस्सा आएगा आपके ऊपर नहीं, माने लाइक यू विल फील गुस्सा कि अरे किसने ऐसे कर दिया, क्यों तुमने जल्दी में लेके आया, यू आर अपसेट, आपने उसको डांटा, आप उसी मूड से ऑफिस में गए, ठीक है, तो आपको रास्ते में और भी कुछ ऐसी चीज़ें आई, आप ऑफिस पहुँचे, आपका मूड ऐसा था, आपने ऑफिस पहुँच के भी किसी को डांट दिया, ठीक है, उसको ज़ोर से डांट दिया, फिर क्या हुआ, आप साइट में गए, आपने देखा क्लाइंट भी थोड़ा सा ऐसा है, बिकॉज आपका मूड ऐसा था, यू आर इन अ नेगेटिव जोन, यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग दैट द क्लाइंट सेड, और वो आपको अच्छा नहीं लगा. फिर क्या हुआ, आप घर आए, आप ऑफिस आए वापस, अपने और जोर से अपने स्टाफ को डांटा, ठीक है, वो घर गया, उसने क्या किया, उसने अपने घर में अपने बच्चे को डांटा होगा, या अपने वाइफ को डांटा होगा, या अपने पेरेंट्स पे वो गुस्सा निकाला होगा. तो जितनी बार आपके गुस्से के कारण लोगों के लाइफ में ये गुस्सा हुआ है, उस सब का फल आपको मिलता है. यू हर्ड ना, कर्म का फल, यस, उसका रेपरकशन, उसका रिपल इफेक्ट ऑफ दैट इमोशन. आपके नेगेटिव इमोशन से जितने लोगों के में लाइफ में वो नेगेटिव इमोशन आया है, आपने गुस्सा किया, उसने किसी और पे गुस्सा किया, ठीक है, हर जन के लाइफ में जो नेगेटिव इमोशन आया, उस सब का बड़ा सा एक नेगेटिव इफेक्ट आपके लाइफ में आएगा. सेम गोज विद पॉजिटिव इफेक्ट. अगर आपने, उस बंदे ने कुछ गड़बड़ काम किया है और आपने उसको हैप्पीली फॉरगिव कर दिया, ठीक है, और बोले कोई बात नहीं, भूल हो गई, नेक्स्ट टाइम ध्यान से करना, यही ना, इतना सही तो बोलना होता है. उससे क्या हुआ, उसको अच्छा लगा कि अरे मेरे से गलती हो गई, वो ऐसे ही गिल्टी फील कर रहा था, उसको अच्छा लगा, और उसने क्या किया, जब वो बंदा घर गया या उसने किसी और से इंटरेक्ट किया, तो वो भी इतना फॉरगिविंग हो गया, ठीक है. सपोज आप रोड पे जा रहे हो, किसी ने आपकी गाड़ी को हिट कर दिया या स्क्रैच कर दिया, आप क्या करोगे? या तो उतर के उस पर चिल्लाने लगोगे, या आप बोलोगे अच्छा चलो कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल, ठीक है. तो हो सकता है उसका रिपल इफेक्ट भी उसी टाइप का होता है, राइट. आपने किसी को हिट किया, उसने आपको फॉरगिव किया, तो आप भी सामने वाले को वो करोगे, ठीक है. इट्स लाइक वो गांधी जी बोलते हैं ना, अगर क्या होता है कि अगर एक जन की आंख, व्हाट वाज दैट, कि अगर एवरीवन स्टार्ट्स टेकिंग रिवेंज द होल वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड, उसका एक तो पूरा अच्छा सा एक तो कोट है ना, इफ एवरीवन स्टार्ट्स टेकिंग रिवेंज द होल वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड.
सब लोग अगर अपना फाइटिंग करने लगेंगे, रिवेंज लेने लगेंगे, द वर्ल्ड विल नॉट बी अ हैप्पी प्लेस. So this is what she is telling us, that we have to choose gratitude no matter what. Yes. दीदी याद आ गया, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. Yeah, yes. Thank you, Swati. I knew you are my savior, huh? You come. मेरे को भी अभी अभी याद आया. हाँ, I was just thinking क्या था ये, क्या था, क्या था. Yes, thank you. Thank you. Yeah. Be kind for everyone you meet is fighting a hard battle. Philosopher of Alexandria, circa 20 BC, AD 50, philosopher. Yes, so this is what this quote is about. Be kind. For everyone you meet is fighting a hard battle. बैटल तो ऑलरेडी हार्ड होती है, ठीक है. अब हम लोग ग्रैटिट्यूड में आ रहे हैं, मैजिक पढ़ रहे हैं, इसलिए ये हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा ही है. हर जन के लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल ही रहे हैं, ठीक है. हमको पता ही नहीं है उनके बारे में. क्या आपको पता है कि आपके घर में जो आपकी हेल्प आती है, उसके घर में उसके संग क्या हो रहा है? आपको पता है? हो सकता है वो कुछ शेयर करती हो सकता है नहीं करती हो, बट यू कैन इमेजिन. आप पेपर में देखते हो क्या क्या न्यूज़ आती है, राइट. यू कैन इमेजिन वॉट एवरी वन इज गोइंग थ्रू. सम चैलेंज और द अदर दे आर गोइंग थ्रू. पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द रोड्स, वॉट दे हैव टू फेस. उनके बॉस उनको कैसे डांटते हैं, हाउ दे आर लिविंग, वी डोंट नो. सो एवरी वन इज फाइटिंग अ चैलेंज और फेसिंग अ चैलेंज. तो when we are kind, when we are understanding, we are giving them support. What will happen if we are giving them support? It will come back to us. When I need support, when I am facing a challenge, someone will help me also. We never know कब आपको. I remember I had a client. तो एक बार हम उनके संग कहीं गए. It was raining very heavily in Calcutta that time. And क्या हुआ, रास्ते में कोई ट्री भी गिर गया था, रास्ता पूरा जैम था, and there was lot of water logging. तो शी सेड, प्रिया चलो हम लोग पैदल चलते हैं थोड़ी सी दूर घर. एंड इट वॉज रेनिंग. आई वॉज थिंकिंग, उस समय काफ़ी पहले की बात है, तो ऐसे ठीक है, हम लोग दोनों पैदल चलना शुरू हो गए, ठीक है. एंड पूरा रास्ता जैम, सारी कार्स खड़ी हुई हैं उस ट्री तक. व्हेन वी क्रॉस द ट्री, देन सडनली वन गाय स्टॉप्ड हिज कार. ही सेड, मैम आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बिकॉज माई क्लाइंट वॉज इन हर आई थिंक लेट 50s और अर्ली 60s में होंगी. तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारी गाड़ी पीछे अटक गई है. एंड दैट गाय, वी डिड नॉट नो हिम, एंड ही हेल्प्ड अस एंड ही ड्रॉप्ड अस टू हर हाउस. हम लोग उन्हीं के घर जा रहे थे, उसने हम लोग को वहाँ तक छोड़ दिया और गाड़ी हम लोग की वहीं पीछे ही रह गई. हाफ एन आवर 45 minutes later, that someone helped us. Like today, I don't even know who that was, what car was that. So I have to be grateful. Okay? उसने हमको हेल्प की, वरना शायद हम लोग को बारिश में और पता नहीं कितना चलना पड़ता है. I was so worried, मेरा बैग खराब हो रहा है, बाल कैसे हो गए, how we become in rains. ठीक है, भीगते भीगते, एंड both of us were worried भी हो रहे थे कि बीमार हो जाएंगे कि क्या है. बट दैट गाय हेल्प्ड अस विदाउट आस्किंग एनीथिंग. And after so many sessions, I think this is the first time I am thinking about that guy and thanking him. Okay, so this is what she is telling us. हम लोग को पता ही नहीं है किसके लाइफ में क्या चल रहा है, and how it will come back to us if we are kind and helping someone else. Okay, let's continue. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. या तो अब देखिए, आपके पास बहुत सारे फ़ोन आते होंगे, हाँ, टेली मार्केटर्स का फ़ोन आता होगा कि अरे मैम ये लोन ले लीजिए, इतना अच्छा ये लोन चल रहा है, आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आप शेयर मार्केट में ये सब करती हैं. व्हाट इज़ आवर नॉर्मल रिस्पॉन्स? नॉट इंटरेस्टेड, एंड वी जस्ट हैंग द फोन, वी जस्ट डिस्कनेक्ट द लाइन, राइट. नॉट हैंग, वी डोंट हैंग अप नाउडेज, वी जस्ट डिस्कनेक्ट द लाइन. आप ऐसा करते हो अभी भी? तो रोंडा बन कह रही है ऐसा नहीं करना है, ठीक है. वो आपको हमेशा, आप अपने बैंक वाले को फ़ोन करोगे, वो जितना भी आपको म्यूजिक सुनाए, जितना भी आपको लाइन में रखे, एंड में क्या बोलता है वो आपको? मैम होप योर इशू वॉज रिजॉल्व, हैव अ गुड डे, बोलता है आपको कि नहीं? उतना पेशेंटली आपको लास्ट वाली लाइन सुनते हो कि उसके पहले ही डिस्कनेक्ट कर देते हो? आपका काम खत्म, टाटा बाय बाय. बताइए, आप सुनते हो? और अगर आप सुनते हो तो क्या आप उसको भी बोलते हो थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड यू ऑल्सो हैव अ नाइस टाइम, नाइस डे? आप बोलते हो? तो आप ध्यान दीजिए आप क्या करते हो. आई बुक के पहले भी हम बोलते थे उसको थैंक यू, हैव अ गुड डे, ये हम बोलते थे. अब वो ये रॉडापन हमको यही बता रही हैं, ठीक है, कि ईच टाइम समवन इज हेल्पिंग यू ऑन द फोन, डोंट थ्रो अवे योर थैंक यू. थ्रो अवे योर मतलब
बस बोलने के लिए, नाम के लिए थैंक यू नहीं बोलना, वी हैव टू फील इट। और फील कैसे करते हैं कि आप उस रीज़न को सोचो कि क्यों आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। ओके, क्या, बिकॉज व्हेन दे फील योर सिंसियरिटी, मतलब उनको भी वो जेन्युइन लगेगा, तभी हमारे लाइफ में वो ग्रैटिट्यूड मैजिक बन के आएगा। यस। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air or say thank you as you are looking down or thank you while you are on your cell phone because you are not really sincere when you do that. So again, Rhonda is telling us this only. We have done this many times कि किसी ने हमको कुछ दिया, हाँ थैंक यू, हम अपना काम कर रहे हैं, बट कैसे काम कर रहे हैं, जस्ट करने के लिए, बोलने के लिए, ताकि हम लोग सोचे कि हम लोग, हमारा मैनर्स प्रॉपर है, हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग बच्चों को सॉरी या थैंक यू बोलना सिखाते हैं, सॉरी थैंक यू प्लीज़, तो क्या बोलते हैं, से इट लाइक यू मीन इट। उसमें भी, इस मूवी में भी यही था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जब उसको फरहान अख्तर सॉरी बोलता है ऋतिक रोशन को, इफ़ यू रिमेंबर दैट सीन, तो वो बोलता क्या है, से इट व्हेन यू मीन इट। अगर आप घर में भी आपने देखा होगा, इफ विद योर सिबलिंग्स और योर फ्रेंड्स, अगर आप जस्ट रिलेशन ठीक ठाक करने के लिए फॉर्मेलिटी में सॉरी या थैंक यू बोल देते हो, हाँ सॉरी बोल देते हो, तो क्या वो सामने वाले को पता नहीं चलता है? बिल्कुल पता चलता है। तो रोंडा बन भी यही कह रही है, डोंट जस्ट से इट इन द एयर, फील इट, उसके बंदे की आंखों में आंखें डाल के, नॉट लाइक लव स्ट्रिकन वाला लुक नहीं, बट जेन्युइन अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड के संग उसको थैंक यू बोलना है। सो ईच टाइम वी आर सेइंग दिस थैंक यू, ईच टाइम वी आर बीइंग ग्रेटफुल, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मैजिक इन आवर लाइफ। यस। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift, as though it was her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showed her with the gratitude's magic dust. I showered her with the gratitude's magic dust, her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. यस, तो रोंडा बन अपने लाइफ का एक एग्जाम्पल दे रही हैं कि कैसे स्टोर असिस्टेंट ने उनको हेल्प किया, और जब उनका टर्न आया कि उसकी हेल्प के लिए वो थैंक यू बोलें, उसकी हेल्प को एक्नॉलेज करें, तब क्या हुआ, उनका फ़ोन आ गया एंड शी फॉरगॉट। ठीक है, वो जाने लगी, बट रोंडा बर्न हैड बीन इन प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो इसीलिए उनको पहले से ही पता चल रहा कि अरे कि ये कुछ मिस हो जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। सो शी वेंट बैक। आप सोचो, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग वापस जाएंगे थैंक यू बोलें, बोलिए, if we do it our life will be magical, we'll be in places where we have not even dreamt of, वहाँ तक हमारी dreams fulfill हो जाएंगी। So this is what she is telling us, we have to show our gratitude whenever we are getting the chance and someone has helped us। yeah। Every action always has an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. तो शी इज़ टेलिंग अस एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। वो कह रही है हमने जो थैंक यू बोला है, ठीक है, वो हमको समझा रही है क्यों हमारे लिए किसी का थैंक यू, किसी को एक्नॉलेज करना, किसी को थैंक यू बोलना इंपॉर्टेंट है। हम उसको थैंक यू बोलेंगे तो वो तो अच्छा फील करेगा ही, ठीक है, उसकी खुशी, उसका स्माइल देख के हम भी खुश होने लगेंगे, राइट, बिकॉज वॉट वी आर गिविंग इज वॉट वी आर गेटिंग। माई एक्शन विच इज़ माई एक्शन, आई एम मेकिंग हर हैप्पी,
तो आई विल ऑल्सो गेट हैप्पी इन रिटर्न। आपने देखा, आपने कुछ अच्छा सा गिफ्ट, बहुत अच्छा सा सोच के आप किसी के लिए कुछ लेके आओ, और वो इतने खुशी से वो गिफ्ट खोल के हैप्पी होता है, आपको नहीं अच्छा लगता है? यू ऑल्सो फील नाइस, यू आर ऑल्सो स्माइलिंग, एंड यू, वो आपको थैंक यू बोल रहा है, आप बोले नहीं नहीं आई एम सो हैप्पी, मुझे तो बहुत मजा आया ऐसा गिफ्ट चूज करने में, क्या? तो शी इज टेलिंग अस दिस ओनली, कि उसकी आंखों में वो स्माइल देखे, उसके चेहरे पे वो खुशी देख के, दैट ऑल्सो फिल्ड हर विद ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। ठीक है, इट फिल्ड मी विद एन इनडिस्क्राइबेबल हैप्पीनेस, और वो भी खुशी खुशी स्टोर से वापस गई। या I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses the magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles the magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. या तो रॉडाबन कह रही हैं वो मैजिक डस्ट सिर्फ लोगों के ऊपर स्प्रिंकल नहीं करती हैं, मतलब सिर्फ उनको नहीं थैंक यू बोल रही हैं, वो इसको हर जगह यूज़ कर रही हैं, लोगों के ऊपर भी, सिचुएशन के ऊपर भी, और चीज़ों के ऊपर भी। ठीक है, जिस चीज़ को वो यूज़ करने जा रही हैं, इट्स लाइक जब वो अपने लैपटॉप पे काम करने जाती हैं तो उसके ऊपर ही वो मैजिक डस्ट छिड़क देती हैं। क्यों? ताकि वो जो काम करने जा रही हों, पहले से ही उसमें पॉजिटिव एनर्जी भेज दी उन्होंने। ठीक है, उनकी जब डॉटर घर से जा रही है तो उस पर वो मैजिक डस्ट छिड़क देती है। क्यों? ताकि वो सेफली जहाँ भी जा रही है वहाँ पहुँच जाए। एंड वो क्या करती है, इमेजिन करती है लाइक दिस, यू आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट। ठीक है, सो दिस इज वॉट शी इज टेलिंग अस, कि वो गाड़ी में भी जा रही है तो उस पर भी छिड़क देती हैं। इन ईच एंड एवरी सिचुएशन शी इज डूइंग दैट। शी इज टेलिंग अस उनकी डॉटर भी ये प्रैक्टिस यूज करती है और बाजू वाले ड्राइवर पे भी छिड़क देती है। क्यों कर रही है वो ये? हाँ, कि बाजू वाला सेफली चलाएगा तो सभी लोग सेफ रहेंगे रोड के ऊपर, राइट? वो स्ट्रेस, और अगर स्पीडी में दिख रहा है, मतलब वो आगे चल के कुछ ना कुछ हो सकता है, उसकी फैमिली है, बाकी लोग जो ड्राइव कर रहे हैं वो सेफ रहें, लोग जो रोड्स पे वॉक कर रहे हैं वो सेफ रहें, इसलिए भी वो उसके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़क देती हैं। हम लोग भी इसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आप कोई मीटिंग में जा रहे हो, आप पहले से ही मैजिक डस्ट छिड़क दो कि यस मीटिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है, कैसे छिड़कना है हम लोग उसको पढ़ेंगे, बट दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन एनी वन एंड एवरी वन। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं एग्जाम के लिए, एवरी डे यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम, कि ये हैप्पी हेल्दी वापस लौट के आ जाए, ज़्यादा शैतानी नहीं करें, बट आपको शैतानी बोलना नहीं है। ठीक है, हैप्पी हेल्दी अच्छे से पढ़ाई करके वापस घर आ जाए। आपने कुछ टेस्टी खाना बनाया है या जल्दी में कुछ बनाया है, यू स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन इट, दैट हुएवर इज ईटिंग इज हैप्पी एंड हेल्दी। ठीक है, उनका सिस्टम ठीक रहे, उनका ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन करे, वी कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन दैट। इफ़ यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट विद योर फ्रेंड्स, पहले से आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दो, दैट यू नो द रेस्टोरेंट, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा गैदरिंग रहा हो, आपका, आपके फूड टेस्टी आया हो, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। आप कोई मूवी भी जा रहे हो तो मूवी भी अच्छी हो, वो भी ज़रूरी है, राइट? पॉपकॉर्न और वो सब भी मिल जाए। मैजिक डस्ट स्प्रिंकल से और आप क्या कर सकते हो, आप पहले से ही मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दो कि हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ फ्री गुडी मिल जाए, राइट? इफ़ यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, आपको हो सकता है फ्री डेजर्ट मिल जाए, या वो बोले नहीं आज मदर्स डे है, आज आप, यू नो कितनी जगह होता है ना ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, वो मिल जाए आपको। आप स्पा में गए हो तो हो सकता है आपका सेशन वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ। आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर ने बोला कि एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं हो, आपको वेटिंग ही नहीं करनी पड़ी हो, राइट? तो वी कैन यूज दिस मैजिक डस्ट इन मैनी सिचुएशंस। ओके, let's continue. Today, take the gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can sprinkle magic dust on everyone. I say thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in the person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are clean of trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you.
यस, तो आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हम लोगों को मिनिमम 10 लोगों को, मिनिमम शी इज टेलिंग अस एटलीस्ट 10 पीपल जो हमारे लिए कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हो सकता है आपका मिल्कमैन आपके उठने के पहले ही गेट के बाहर मिल्क के पैकेट्स या बॉटल्स रख देता हो, न्यूज़पेपर वाला आके आपके गेट के पास न्यूज़पेपर रख देता हो, आपका फूल वाला होगा वो पैकेट फूल का टांग के जाता होगा, आपको नहीं पता। आपके उठने के पहले बिल्डिंग के क्लीनर ने स्टेयर्स पूरी क्लीन कर दी हैं, वो हो सकता है। आपका सिक्योरिटी गार्ड जो 24 आवर्स वहाँ पे रहता है, और एक नहीं दो तीन रहते हैं, राइट, वो लोग हैं वहाँ पे। अगर हम लोग उनसे नहीं भी मिल रहे, शी इज टेलिंग अस, अगर हमको डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा नहीं हो रहा है, तो हम एटलीस्ट मेंटली उसको थैंक यू बोलें। और जब थैंक यू बोलें तो हमको इमेजिन करना है कि वो गोल्डन मैजिक डस्ट उसके पास जा रही है। अब बोले मुझे पता ही नहीं कौन है, मैं तो सो रही होती, मुझे पता ही नहीं मिल्कमैन कब आके चला जाता, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं उसको, तो भी कोई तो एक बंदा आ रहा है, आप इमेजिन करो कि आपका थैंक यू उसके पास पहुंच रहा है। ओके, एंड कैसे करना है, शी टेलिंग अस, आप इस तरीके से फील कर सकते हो, जस्ट टू हैव स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। शी इज गिविंग अस दिस एग्जाम्पल कि इसके पहले तो हमने नोटिस ही नहीं किया कि रोड्स भी इतनी क्लीन रहती हैं, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, ट्रीज भी एकदम फ्रेश रहते हैं, पता नहीं कौन है गार्डनर जिसने ये प्लांट्स लगा के रखे हैं और उसमें इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स निकले हुए हैं। अगर आपके जहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो वहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, उनकी भी कोई टेक केयर करता होगा। लाइक माई niece had come the other day and I took her to a park near my house, and वहाँ पे एक्चुअल में केज था, उसमें रैबिट्स थे, बर्ड्स थी, ठीक है, एंड वो एकदम मस्ती से, कोई तो उनको टेक केयर कर रहा होगा, डक्स थी वहाँ पे पॉन्ड में, ठीक है, तो उससे कि कोई तो उनकी टेक केयर कर रहा होगा, तो उसको थैंक यू आप कर सकते हो। इट्स लाइक whomever you are seeing, कि कोई भी जिसने हमको ये सर्विस दी है उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। आपके बिल्डिंग में रोज कोई पानी का पंप ऑन करता होगा, राइट, तभी आपके घर में पानी आता है, कोई टेरेस क्लीन करता होगा, तो वी हैव टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स एंड बी ग्रेटफुल टू देम। या Make sure you keep the count of the people in the service you are grateful for so that you know when you have thanked 10 different people for their service and sprinkle the magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over the people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach the people and that it will be available to them to help them to improve their lives. And every time you sprinkle the magic dust over another person, it also returns to you in your own life. यस, तो रौंडा बहन हमसे कह रही हैं हमको ये काउंट ध्यान रखना है कि हमने कितने लोगों को थैंक यू किया है, ठीक है, 10 लोगों को तो करना ही करना है, उससे ज़्यादा भी आपको मिल रही है मौका, याद आ रहा है तो उनको भी कर दीजिए। शी इज़ टेलिंग अस, जब हम उनको मन में थैंक यू बोलें तो हम इमेजिन करें कि आपने जो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किए विद योर थैंक यू वो उन तक पहुंच रही है। क्यों? अगर उन तक पहुंच रही है तो उनके लाइफ में असर करेगी। इट शुड नॉट बी जनरल इन द एयर, आपने एक थैंक यू बोल दिया, ओके, यू हैव टू इमेजिन दैट योर थैंक यू इज रीचिंग दैट पर्सन एंड इज bringing some positivity into their life. This is what she is telling us. It will be available to help them to improve their lives. आप उनको एक ब्लेसिंग भेज रहे हो बेसिकली, ठीक है। हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि जब हम अपने एल्डरली के पैर छूते हैं या उनको प्रणाम करते हैं या उनको एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है, तो वो जब हमको आशीर्वाद देते हैं तो हमारे पास पहुंचता है ना, राइट। हम लोगों ने इतनी, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स भरे हुए से कि अरे ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया, श्राप मतलब क्या हुआ, एक नेगेटिव फीलिंग दी है, ठीक है, आशीर्वाद दिया है, उसका मतलब क्या हुआ, एक ब्लेसिंग दी है, वो पहुंची हमारे लाइफ में और वो हमको हेल्प कर रही है, हमारी लाइफ इंप्रूव कर रही है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, ईच टाइम ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हेन वी आर सेइंग अ थैंक यू, वी हैव टू इमेजिन कि हमारा थैंक यू उसके लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के जा रहा है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, पहले हम लोगों को उतना पावरफुल बनना पड़ेगा। पावरफुल कैसे बनेंगे, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देंगे, जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स लिखेंगे, जितना ज़्यादा चूज करेंगे कि हमको ग्रैटिट्यूड देना है, उतना ही हमारा पावर बढ़ेगा कि हम उसको हेल्प भी कर सकें। Okay, and what will happen, it will come back to us in our own life, because what we are giving, when we are giving blessings to others, blessings will come back to us, and everyone needs blessings. Yes. If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling the instances where people in service went out of their way for you.
It may have been someone on the phone, or it may have been a great person who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or the local store assistants. Make a written list of 10 instances where the people in the service helped you and send the magic dust by saying thank you to every one of them. या तो रोंडा बर्न कह रही हैं अगर आपको टाइम मिले घर पे हो ऑफिस पे हो दैट इज़ इरेलीवेंट इफ़ यू आर एट होम टुडे दिन में कोई ना कोई टाइम तो अपन घर में होते ही है तो क्या करना है हमको याद करना है कि किस बार हम लोगों को किसी ने हेल्प की थी ठीक है 10 चीज़ें याद करनी है जैसे उन्होंने कहा उसने बहुत अच्छी सर्विस दी हो सकता है वो आपकी कोई एक फेवरेट ब्यूटिशियन हो ठीक है जो या आपकी फेवरेट मेस्यूज हो उसने आज आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट मालिश कर दी ठीक है आपने उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए लेकिन उसने आपकी एक्स्ट्रा मालिश कर दी आप उसके बारे में सोच सकते हो सकता है कि कोई आप क्लिनिक गए हो वहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट हो उसने आपको थोड़ा लाइन से जल्दी भेज दिया क्योंकि आपका बच्चा रो रहा था है ना या आपने फ़ोन किया नहीं मुझे अर्जेंट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए या मुझे अर्जेंट कोई ड्रेस चाहिए है और बंदे ने या बंदी ने आपकी हेल्प कर दी और आपको वो याद है कि पता है उसने रात में मेरे लिए 8 बजे शॉप खोल के मुझे तो शादी में जाना था 8 बजे शॉप खोल के मुझे ये प्रोडक्ट दिया आप बोलोगे उसकी तो सेल भी हो रही थी तो मैं थैंक यू क्यों बोलूँ उसकी सेल हो रही थी लेकिन आपके कंफर्ट के लिए आपकी कन्वीनियंस के लिए अगर उसने जाके आपकी कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की है तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू से थैंक यू एंड स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम सो दिस इज अनदर प्रैक्टिस पहली क्या है कि मिनिमम 10 लोगों को हमको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है ओके एंड नेक्स्ट इज दिस इफ यू थिंक ऑफ समवन स्पेशल हु हैज हेल्प्ड अस वी हैव टू एक्नॉलेज देम ऑल्सो this we do not have to do because we'll be reading this practice tomorrow evening yeah so let's read from here. Magic practice number 10. Magic dust everyone. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Today, sprinkle magic dust on the 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, so everyone is clear what we have to do tomorrow. As soon as we get up, we'll write our blessings, ठीक है? We will read our health note, we'll read our money note, and then what we will do, we'll start thinking of the people. Whole day we can do this practice. It's not that कि आपको सुबह ही करना है. हम बस रिविजन कर रहे थे आपके संग कि क्या क्या उठ के हमको करना है. सबसे पहले ब्लेसिंग्स, फिर अगर आपने कुछ चाय पानी जो भी पिया उस पर आपको थैंक यू करना है इंग्रेडिएंट डाल के अपना एंड सारे दिन यही सारी प्रैक्टिसेस ऑन रखनी है और जितने बार आपको कोई याद आए कि उसने हमारी हेल्प की है चाहे वो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हो या पेट्रोल पंप पे किसी ने आपका विंड स्क्रीन क्लीन कर दिया हो या कार की डस्टिंग कर दिया हो आपको उसके पैसे भी नहीं देने किसी ने आपको रास्ते पे गाइड कर दिया कि गाड़ी को पार्क कैसे करो बाहर कैसे निकालो ठीक है किसी ने आपके लिए गेट खोल दिया किसी ने आपके लिए चेयर पुल कर दी not when you're sitting but when you're getting up helped you each time someone has helped you we have to be grateful to that person and what we have to do whenever you are saying thank you if possible look at the person take a pause and then say thank you it's not that कि यहाँ देखते देखते वहाँ thank you हवा में जा रहा है okay and एक और चीज़ मेरे को बोलनी थी gratitude is like a अगर हमको अच्छा आज कल बात करते हैं लेट्स दिस इज समथिंग डिफरेंट दैट आई वांटेड टू talk about we'll talk about it tomorrow we'll start with the meditation now okay so thank you Aditi thank you for reading so nicely for all of us yeah so आपको पता है क्या करना है you have to sit straight and close your eyes gently you have to clasp your hands and put in your lap और अगर आप चेयर पे बैठे हो तो एंकल क्रॉस कर लो और अगर बेड पे बैठे हो तो आप आलती पालती मार के आराम से बैठ जाइए ठीक है इफ़ यू वांट यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ द बैक रेस्ट है जो भी आपको लेना है वैसे बैठ सकते हो बट इट शुड नॉट बी कि आप स्लाउचिंग पोज में हो ठीक है योर बैक शुड बी लिटिल स्ट्रेट या सो क्लोज योर आईज एंड लेट्स स्टार्ट
Take a deep breath in and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. One more time. A conscious deep breath in and a long breath out. Your whole body is getting relaxed. Your feet are relaxed. Your legs are relaxed. Your arms are getting relaxed. Your spine is getting relaxed. Your shoulders are down and relaxed. Your jaw is relaxed. Your cheeks are soft. Your eyes gently closed. And your whole body is getting relaxed. Feel your body settling into the seat. Bring your awareness to your breath, your normal, natural breath. As you inhale, as you exhale, your focus is on your breath. Your breathing is normal and natural. Observe your breath. Is it shallow? Is it deep? Just let it be the way it is. Your normal breathing. Are you breathing fast? Are you breathing slow? It is perfectly normal. Your mind is just observing how you are breathing. In and out. Observe the breath that goes in your nostrils. Is it cool? Observe it when you exhale. Is it warm? Breathe in and breathe out. Your normal inhalation and your normal exhalation. In and out. Your whole body is totally relaxed. Bring your attention back to your breath. In this moment, it is only you, your breath, and your mind. Your breath is a bridge between you and your soul. If you are getting any thoughts, just let them pass. Observe them as they are the waves in the ocean. Just let them be. Your focus is only on your breath.
Breathing in and breathing out. Your each breath in is making you calm. It's relaxing your mind. Your each breath is making you happy. Your mind is focusing only on your breath. In and out. In and out. You're totally relaxed and your focus is only on your breath. In and out. You're breathing in positivity and exhaling, you are relaxed. Breathe in and out. Your awareness is only on your breath. You are God's favorite child. Your awareness to your breath is making you closer to God. Your each breath is filling you with gratitude. You are a happy soul. Breathe in and breathe out. It's you, your breath, and your mind. In and out. Let your thoughts be just the way they are. Your focus is back to your breath. The cool air as you inhale and the warm air as you exhale. You are connected with your breath, the life force. It's rejuvenating your soul. Your each breath is charging you with gratitude and positivity. Now bring your hands to your heart. Your warm, gentle, kind heart. Breathe in, fill your heart, and exhale from your heart. As you breathe in and out, your focus is on your heart. Into your heart and out to your heart. Feel the beat of your heart.
Thank you. The beautiful, kind heart. Thank you for being so kind and grateful. This gentle heart. Thank you for being God's special child. Thank you, this beautiful universe, for giving me this wonderful, healthy body. Thank you for keeping me alive. Thank you for the happiness that showers on me every day, all the time. Thank you, God, for this lovely, amazing family. Thank you for all the loved ones and my friends every day. Feel the gratitude in your heart. Thank you for the happiness and good health of all my loved ones. Thank you, universe. Thank you, five elements of nature, for giving me this beautiful, happy, blessed life. Thank you, dear Bhagwanji, for showing us this path of gratitude and positivity. Thank you for making me a kind and grateful soul. Take a deep breath in and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. One last time, a deep breath in and a long breath out. Now slowly and gently rub your palms and place them on your beautiful eyes. And whenever you are ready, gently open your eyes. Thank you for being so understanding. Thank you for being here with me. And sorry for the background noises that were there. Thank you. Any questions or sharings? Thank you, Priyaji. Thank you. Thank you. So we meet tomorrow. Please read the chapter and do your gratitude practices. Thank you so much. Thank you and good night. Bye. Thank you, Auntie. Thank you.